Today we'll talk about the mechanism of crossing over, how this crossing over occurs. I told you that crossing over is simply the exchange of genetic material between non-sister chromatids of two homologous chromosomes. इसमें क्रॉसिंग ओवर में दो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होता है. Now how this occurs, what is the mechanism behind this crossing over? Today we will talk about that. The crossing over occurs by a mechanism that is known as breakage and reunion theory of Darlington. Crossing over occurs by a mechanism which is known as breakage and reunion theory of Darlington. इसको हम जो मैकेनिज्म दिया गया है क्रॉसिंग ओवर के लिए वो है ब्रेकेज एंड रियूनियन थ्योरी. और ये थ्योरी जो है इसको हम कायाजमेटा टाइप हाइपोथेसिस भी बोलते हैं. इट इज आल्सो नोन एज कायाजमेटा टाइप हाइपोथेसिस. इस थ्योरी को हम कायाजमेटा टाइप हाइपोथेसिस बोलते हैं. अगर हम बात करेंगे ब्रेकेज एंड रियूनियन थ्योरी ऑफ डार्लिंगटन की तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं विच एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. एक तो है इसमें फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज साइनेप्सिस. सेकंड जो है सेकंड स्टेप इज टेट्राड फॉर्मेशन. थर्ड वन इज क्रॉसिंग ओवर जिसको हम रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं. एंड फोर्थ वन इज दिस इज क्रॉसिंग ओवर. It is also called as a recombination. Then fourth is disjunction. Disjunction is separation of homologous chromosomes. It is also called as separation of homologous chromosomes. अब ये जो ब्रेकेज एंड रियूनियन थ्योरी ऑफ डार्लिंगटन जो है जिसको हम कायाजमेटा टाइप हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, इसके 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये है साइनेप्सिस, टेट्राड फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर और डिसजंक्शन. फर्स्ट स्टेप जो है साइनेप्सिस. साइनेप्सिस सिंपली मीन्स इसमें पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है दे कम टू लाइफ टुगेदर इन पेयर्स. इनमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर्स में आते हैं. सो आई हैव शोन इट हियर. दीज आर 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, दे कम इन पेयर्स. अब इसमें साइनेप्सिस में जो 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, फॉर एग्जांपल दिस इज 1 होमोलॉगस क्रोमोसोम, दिस इज अनदर होमोलॉगस क्रोमोसोम, दे कम टुगेदर इन पेयर्स. और ये जो सिमिलर जीन लोग के होते हैं इन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के, वो एट द एग्जैक्ट अपोजिट टू ईच अदर आते हैं इन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. दैट मीन्स ड्यूरिंग साइनेप्सिस होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है lie together in pairs. That is here. यहाँ पर 2 homologous chromosomes है. 2 homologous chromosomes come together in pairs. अब we know that these are homologous chromosomes. These 2 homologous chromosomes they come together in pairs. इसमें से एक होमोलॉगस क्रोमोसोम, 1 मेंबर ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम वो है मैटरनल क्रोमोसोम और दूसरा जो है one is maternal chromosome, another is paternal chromosome. Homologous chromosomes have 2 members. 1 member person individual receives from mother, another member receives from the father. So this is maternal chromosome, this is paternal chromosome. And
the pairing of homologous chromosomes, this is called as synapses. Synapses. So what is the pairing of homologous chromosomes? This is known as synapses. Pairing of homologous chromosomes is known as synapses. और इस synapses में जो homologous chromosomes होते हैं वो exactly opposite to each other आते हैं और उनके जो similar gene loci होते हैं, gene loci वो exact opposite to each other आते हैं. For example, यहाँ पर है gene है यहाँ पर A, तो इसका जो allele होगा वो बिल्कुल इसी gene locus के बिल्कुल opposite होगा. For example, small a होगा या capital A होगा. तो it means that कि the similar gene loci of two homologous chromosomes, they lie exactly opposite to each other in two homologous chromosomes. और जब pairing होती है homologous chromosomes की, they produce, that is called as bivalents. इनको हम bivalents बोलते हैं. Bivalents. जब दो homologous chromosomes synapses करते हैं तो they produce two bivalents. This is one bivalent, this is another. So it is called two bivalents. लेकिन at this stage, इस stage पे यहाँ पर chromatids इनके visible नहीं होते हैं और this synapse occurs in the zygotine substage of prophase of meiosis. This synapses हमें पता है कि क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होती है, मियोसिस फर्स्ट, और ये साइनेप्सिस जो है इट अकर्स ड्यूरिंग द ज़ाइगोटीन सबस्टेज ऑफ प्रोफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, so we can say that this synapse occurs during the passage substage of prophase of meiosis first. अब ये जो homologous chromosomes जो है होते हैं इनको there is a force that is called a synaptic force. ये synaptic force दो homologous chromosomes को attract करता है. So the two homologous chromosomes are attracted by a force that is called a synaptic force. Synaptic force. और इन दो homologous chromosomes के बीच में एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है that is called as synaptonymal complex. So synaptonymal complex is a protein complex. Synaptonymal complex. Synaptonymal complex. Synaptonymal complex. The two homologous chromosomes are held together by a protein complex that is called a synaptonymal complex. और ये synaptonymal complex जो है दो homologous chromosomes के बीच में बनता है, which holds the two homologous chromosomes together. और जो दो homologous chromosomes होते हैं उनको attract करता है by a force that is called as synaptic force. This was regarding the synapses. Then we have another what is called as tetrad formation. Then we have tetrad formation. During tetrad formation जो homologous chromosomes है उनके chromatids visible हो जाते हैं और they became four stranded. Two homologous chromosomes जो है इनमें ये chromatids visible हो जाते हैं. As a result of that there are four strands. Now there are four strands in two homologous chromosomes. This is called as tetrad. That means the chromatids of synapsid homologous chromosomes became visible
जो क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमेटिड्स ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल। और जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, वन होमोलॉगस क्रोमोसोम या वन क्रोमोसोम, हम इसके दो क्रोमेटिड्स होते हैं अब, एंड दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के 4 क्रोमेटिड्स। दैट मीन्स यहां पर ऐसी कंडीशन अब आएगी, so we can say that these are two homologous chromosomes। ये इसके दो क्रोमेटिड्स है, ये इसके दो क्रोमेटिड्स है। दिस इज कॉल्ड एज टेट्राड स्टेज। यहाँ पर भी हमने टेट्राड दिखाया है। दिस आर टू क्रोमेटिड्स ऑफ वन homologous chromosome, this is another two chromatids of another member of the homologous chromosome, so this is called as four-stranded stage, four-stranded stage। इसको हम टेट्राड स्टेज भी बोलते हैं। अब यहां पर जो है, यहां पर ये दो, these are called as sister chromatids। ये एक मेंबर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इसके दो क्रोमेटिड्स है, इसको हम they are called as sister chromatids। ऑब्वियसली ये भी है, these are sister chromatids। और इनमें से ये दो, these two, इनको हम नॉन सिस्टर, ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, इनको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। और रिमेंबर दैट क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन अ टेट्राड स्टेज और फोर स्ट्रैंडेड स्टेज। क्रॉसिंग ओवर वो टेट्राड स्टेज में होती है। Crossing over occurs in a four-stranded stage or tetrad stage. Now we have another important point, that is crossing over. We have crossing over. This crossing over occurs during the tetrad stage, and it occurs between non-sister chromatids, ये और ये, these are non-sister chromatids। Crossing over occurs between non-sister chromatids of two homologous chromosomes। Or this crossing over occurs during the tetrad stage, it occurs in the pastin substage of prophase of meiosis first। अब किस स्टेज में meiosis में ये होते हैं, लेकिन किस स्टेज में होते हैं? in the pastin substage of prophase of meiosis first। Crossing over occurs in the pastin substage of prophase of meiosis first। और यहां पर जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम एट होमोलॉगस साइट्स, यहां पर ब्रेकेज होती है डीएनए सेगमेंट्स की, फिर एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल क्रॉसिंग ओवर में। सो क्रॉसिंग ओवर बेसिकली इट लीड्स टू फिजिकल एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। सो इसमें फिजिकल एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का। दैट मीन्स इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज होता है ऑफ डीएनए सेगमेंट्स। दैट मीन्स दिस इज क्रॉसिंग ओवर, ये क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर दिस अकर्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स,
ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स पर होते हैं। और उस पॉइंट पर जहां पर क्रॉसिंग और एग्जैक्ट पोजीशन जहां पर क्रॉसिंग और होती है, दिस पोजीशन, इसको हम कायाजमेटा बोलते हैं, कायाजमेटा। सो व्हाट इज कायाजमेटा? कायाजमेटा is the point or the site where the actual crossing over takes place. So the point or the site where the actual, जहां पर actual crossing over होती है, that is known as chiasmata. और crossing over जो है recombination भी बोलते हैं, इस दौरान chiasmata formation होती है। और इस पॉइंट पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, फिजिकल म्यूचुअली एक्सचेंज, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए सेगमेंट्स को। और इनको हम जहां पर दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, इन्हीं के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। और सॉरी, दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। इन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है यही इन्वॉल्व होते हैं इन क्रॉसिंग ओवर। सो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है, दे आर इन्वॉल्वड इन द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। देन वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं क्रोमैटिड्स, दैट मीन्स ये दो क्रोमैटिड्स इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इनको हम दीज आर कॉल्ड एज क्रॉस ओवर क्रोमैटिड्स, क्रॉस ओवर क्रोमैटिड्स। दैट मीन्स ये दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है जिन्होंने म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किया, इनको हम क्रॉस ओवर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, और रिकॉम्बिनेंट्स भी बोलते हैं, और रिकॉम्बिनेंट्स। और दो क्रोमैटिड्स जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इन द क्रॉसिंग ओवर, उनको हम नॉन क्रॉस ओवर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, नॉन क्रॉस ओवर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। These are called नॉन क्रॉस ओवर क्रोमैटिड्स। अब ये जो दिस क्रॉसिंग ओवर जो है, इट अकर्स बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। और इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज एंडोन्यूक्लियसेस एंड एक्सोन्यूक्लियसेस। द एंजाइम्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द ब्रेकेज एंड रियूनियन ऑफ डीएनए सेगमेंट्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ही पार्टिसिपेट करते हैं क्रॉसिंग ओवर में, और वो एंजाइम्स उनको हम एंडोन्यूक्लियसेस बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस, एंडोन्यूक्लियसेस एंड एक्सोन्यूक्लियसेस। और इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट कि ये क्रॉसिंग ओवर जो है दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में, इट इज सो एग्जैक्ट, इट इज सो परफेक्ट, प्रिसाइज, दैट द क्रोमैटिड नाइदर लूजेस एनी जीन्स नॉर गेन्स एनी जीन्स। ये इतनी एग्जैक्ट होती है कि न कोई होमोलॉगस क्रोमोसोम गेन करता है एक्स्ट्रा जीन्स, न कोई लॉस करता है जीन्स ड्यूरिंग दिस क्रॉसिंग ओवर। दैट मीन्स, इसका मतलब है कि देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, एंड दैट इज सो एग्जैक्ट, दैट इज सो प्रिसाइज, दैट द क्रोमैटिड नाइदर लूजेस any genus nor gains any genus. So this was regarding the crossing over which takes place between the non-sister chromatids of two homologous chromosomes in a tetrad stage during the passage in substage of prophase of meiosis first. उसके बाद जब crossing over complete होती है, उसके बाद then there is another important thing, that is disjunction. That is disjunction. What is disjunction? Disjunction means the separation of homologous chromosomes after crossing over. जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, ये जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, क्योंकि इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स, साइनेप्टिक फोर्स
जो होता है वो द साइनेप्टिक फोरस जो है दैट गेट्स द साइनेप्टिक फोरस जो है वो फोरस एंड हो जाता है और साइनेप्टोनिमल अटैचमेंट पॉइंट्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है सेपरेट होते हैं. सो दिस हाउ दिस डिजंक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट अकर्स. Separation of homologous chromosomes occurs as the synaptic force ends. जो अट्रैक्टिव साइनेप्टिक फोर्स होता है वो एंड हो जाता है, वो खत्म हो जाता है बिटवीन द टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. उसके बाद ये जो अट्रैक्टिव फोर्स जब खत्म हो जाएगा तो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाएंगे. ऑल्सो ये जो है साइनेप्टोनिमल अटैचमेंट पॉइंट्स जो है साइनेप्टोनिमल अटैचमेंट पॉइंट्स जो होते हैं ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को अटैच रखते हैं ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर. अब ये भी सेग्रीगेट हो जाते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दीज टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स वो सेपरेट हो जाते हैं, वो जुदा हो जाते हैं. इस तरह दिस वाज द ब्रेकेज एंड रियूनियन थ्योरी ऑफ डार्लिंगटन. अब इसको ब्रेकेज एंड रियूनियन थ्योरी ऑफ डार्लिंगटन क्यों कहा गया? ब्रेकेज एंड रियूनियन थ्योरी इसलिए इसको कहा गया है कि इसमें फिजिकली जो डीएनए सेगमेंट्स ब्रेक हो जाते हैं. दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, दिस इज वन होमोलॉगस क्रोमोसोम, दिस इज अनदर होमोलॉगस क्रोमोसोम, अगर इनमें फिजिकल एक्सचेंज हो जाएगा तो ये डीएनए सेगमेंट जो है इसमें चला जाएगा इस क्रोमोसोम में और ये डीएनए सेगमेंट इसमें चला जाएगा. दैट मीन्स फर्स्ट देयर इज द ब्रेकेज ऑफ डीएनए सेगमेंट्स. उसके बाद ये डीएनए सेगमेंट्स फिर रिजॉइन हो जाते हैं टू देयर रेस्पेक्टिव मेंबर ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम. इसलिए इसको ब्रेकेज एंड रियूनियन थ्योरी ऑफ डार्लिंगटन कहा गया है. अब कायस्मेटा टाइप हाइपोथेसिस भी इसको कहा गया है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक पॉइंट होता है, एक साइट होता है जहां पर एक्चुअल क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम, जिसको हम कायस्मेटा बोलते हैं. तो कायस्मेटा जो है वो एक एक्चुअल साइट है जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकॉम्बिनेशन होती है. दैट इज वाई इसको हम कायस्मेटा टाइप हाइपोथेसिस भी बोलते हैं. दिस वाज रिकॉर्डिंग द हाउ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. एंड दिस क्रॉसिंग ओवर इट लीड्स टू द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द डीएनए सेगमेंट्स और इससे रिकॉम्बिनेशन होती है, जिसकी वजह से जो we can say that the genetic variation आ जाती है in the offsprings, in the progeny. Thanks.